Good morning, guys. We will discuss some more we will discuss some more terminology of accounting system. Next one, stock or stock in trade. What is stock? That the term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. इसका मतलब ये है कि जो माल हमने बेचने के लिए खरीदा है और साल के आखिर में जो हमारे पास बच गया है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. फॉर एग्जांपल, आवर अकाउंटिंग पीरियड इज starts from April 1st and ended on 31st March. तो ऑन 31st मार्च कितना हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड. Stock may be classified into two parts: opening stock and closing stock. Opening stock means the value of goods lying unsold at the beginning of the accounting year. Means जो स्टॉक साल के पहली तारीख को, इट मीन्स 1st of April, जो आपके पास है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक. Whereas the term closing stock means the value of goods lying unsold at the end of the accounting period. साल के लास्ट डे को जितना स्टॉक बचता है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. इट मीन्स ऑन 31st of March जितना भी बैलेंस में माल पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है. प्लीज रिमेंबर, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट, इन्वेंट्री. There is a little difference between stock and inventory. स्टॉक का मतलब भी यही होता है कि साल के लास्ट में कितना माल हमारे पास बचा हुआ हो. बट स्टॉक वर्ड इज यूजिंग ओनली फॉर ट्रेडिंग फर्म. ट्रेडिंग फर्म मीन्स कि हमने तैयार माल खरीदा और तैयार माल ही हमने बेचा. तो ऐसी फर्म में जो स्टॉक 31st of March को बचेगा, वो कहलाएगा स्टॉक. एंड इफ वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी हमारी जो बिजनेस एंटिटी है वो किसी चीज को मैन्युफैक्चर करती है, तो वी विल यूज द टर्म इन्वेंट्री इंस्टीड ऑफ स्टॉक. तो देयर इज ए लिटिल डिफरेंस. स्टॉक यूजेस फॉर ट्रेडिंग फर्म and inventory uses for manufacturing firm. There are 4 type of inventory. First, inventory of raw material. क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो कुछ स्टॉक हमारे पास रॉ मटेरियल होगा. इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड. For example, the value of cotton in case of cloth mill is inventory of raw material. Second, inventory of work in progress. It is also termed as inventory of partially finished goods. Work in progress means जो माल न तो पूरा बना है और न ही raw material है. It means goods in semi-finished form. Such goods need further processing for converting into finished product. For the valuation of work in projects, the value of raw material used in it, the cost of labor, power, fuel and other expenses on proportionate basis are included. For example, in case of cloth mill, the value of thread and unfinished cost cloth
will be the inventory of work in progress. Third, inventory of finished goods. Inventory of finished goods, it's include the inventory of those goods which have been completely processed and ready for sale but are lying unsold at the end of accounting period. यानी हमारे पास तैयार माल जो हमने बना लिया और जो साल के लास्ट डे को हमारे पास बिना बिका हुआ रह गया, that is called inventory of finished goods. In case of cloth mill, the value of finished goods will be the value of inventory of finished goods. And lastly, inventory of stock in trade. It includes the value of those goods which are purchased for reselling. यदि हमने रीसेल के लिए भी कोई माल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी खरीदा है और वो साल के लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. तो आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा कि वी विल यूज इन्वेंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड स्टॉक for trading firm. Now, how we can calculate of closing inventory? देखिए ट्रेडिंग फर्म में तो जितने का माल हमने परचेज किया, जितना हमने बेच दिया, जो बचा हुआ माल हमने परचेज किया है उसकी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी. बट इन इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है एंड फिनिश्ड गुड्स. तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट जोड़ेंगे और उसके बाद उसका वैल्यूएशन करेंगे. लेट अस सी. To ascertain the value of closing inventory, a complete list of those items in the godown together with their quantities is prepared. सबसे पहले कौन कौन सा आइटम आपके पास गोडाउन में एट द एंड ऑफ द ईयर और कितनी क्वांटिटी में वो प्रिपेयर करनी होगी. Also the separate list should be prepared for raw material, semi finished goods, finished goods and stock in trade. यानी हमको इस पूरे माल को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है. रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी है, सेमी फिनिश्ड गुड्स की कितनी क्वांटिटी है, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड. I mean चारों में care should be taken that the following goods are not included in the list of inventory. जब हम इन्वेंट्री में इन सब चीज़ों का बाइफर्केशन कर लें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें फॉलोइंग्स इंक्लूड नहीं करेंगे. कौन कौन सी चीज़ इसमें अगर इंक्लूड की हुई तो वो उसमें से हम लेस कर देंगे. फर्स्ट, गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर्ड. मान लीजिए कोई माल हमने बेच दिया लेकिन अभी तक हमने हमारे फाइनेंशियल ईयर में बेच दिया लेकिन अभी उसकी डिलीवरी नहीं दी, तो वी विल नॉट इंक्लूड इन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड बट विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. गुड्स परचेज और रिसीव्ड, गुड्स को हमने खरीद लिया, रिसीव्ड भी कर लिया, बट विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक में यदि हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे. इट विल इंक्लूडेड इन नेक्स्ट ईयर व्हेन वी एंटर्ड इन परचेज बुक. ये दो चीज़ों को तो ध्यान रखना चाहिए जिन्हें कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करना है. बट क्या क्या इंक्लूड करना है? द फॉलोइंग गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री. फर्स्ट, गुड्स सेंड टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. यदि हमने किसी भी कस्टमर को माल इस कंडीशन पे बेचा है कि वो अगर उसे पसंद नहीं हो तो वो उसे वापस कर देगा, तो ऐसे माल को हम सेल नहीं मानेंगे और उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री में जोड़ लेंगे. सेकंड, गुड्स सेंड टू एजेंट्स फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विथ देम एज अनसोल्ड. बहुत बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, वो बड़ी बड़ी फर्में हर स्टेट में अपना एजेंट अपॉइंट कर देती हैं और उनके पास अपना माल भेज देती हैं. उन स्टेट में उन एजेंटों के द्वारा ही माल बेचा जाता है. तो उन एजेंट के पास जो
31 मार्च को जो भी माल अनसोल्ड बचा रहेगा, it will be included in closing inventory. So these are two things will be included in the closing inventory. I think it is clear to you. Now next topic, what is the difference between stock and inventory? As I told you earlier that stock is related to trading firm and inventory related to manufacturing firm. But how we can write it? Stock refers only to the value of those goods which are purchased for resale and which are lying unsold at the end of accounting period. यानी जैसा हमने माल खरीदा वैसा ही हमने बेचा, उसका जो भी बैलेंस बचा एट द एंड ऑफ द ईयर, that is called stock. Whereas the inventory is a wide term which include stock also. Inventory stock को भी include करती है. It includes inventory of raw material, inventory of semi-finished goods, inventory of finished goods, and inventory of stock. Next, what is trade receivable? Trade receivable means it refers to the amount receivable on account of sale of goods or service rendered by the company in the normal course of business. यानी जिन व्यक्तियों को हमने माल बेचा है या सर्विस दी है और उनसे पैसा लेना है, that is called trade receivable. In other word, we can say कि जिन भी कस्टमर्स को हमने माल बेचा है या सर्विस दी है उधार में ऑन क्रेडिट बेसिस, वो सारे के सारे ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं. इट ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड बोथ वन डेटर्स एंड सेकंड बिल रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. डेटर्स, द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन और फर्म टू whom goods have been sold or service rendered on credit and payment has not been received from them. यानी ऐसे व्यक्ति या फर्म जिन्हें हमने उधार माल बेचा है या उधार सर्विस दी है और उनका पैसा अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो डेटर्स कहलाते हैं. They still owe some amount to the business. यानी बिजनेस अभी भी उनसे कुछ अमाउंट लेना, बिजनेस को उनसे कुछ अमाउंट लेना बाकी रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स वर्थ ₹50,000 हैज बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, he will continue to remain the debtor of business so long as he does not make the full payment. यानी हमने मोहन को 50,000 का माल बेचा उधार में, तो तब तक वो हमारा डेटर रहेगा जब तक कि उसने हमारा पूरा पेमेंट नहीं कर दिया. नेक्स्ट, सेकंड, बिल्स रिसीवेबल. A bill of exchange become bill receivable for the person who drawer and get it back after the acceptance from the drawee. Thus, bill receivable is an accounting term for bill of exchange drawn on the debtors or received by way of endorsement from them. The amount specified in such a bill is a receivable at a future date. वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बिल रिसीवेबल और एक टर्म मैं आपको ट्रेड पेबल में बताऊंगा, बिल्स पेबल. इसका एक फुल चैप्टर हम लोग 11th में डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी ये समझ लीजिए कि व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल. कभी कभी हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेच देते हैं, तो उसे जिस तरह हम एडवांस चेक ले लेते हैं उसी तरह एक डॉक्यूमेंट उससे लिखवा लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट में वो लिख देता है, जो व्यक्ति उधार माल खरीदता है, कि आई प्रोमिस टू पे रुपीज इतना आफ्टर 2 months और 3 months और 4 months, एज आपका जो भी उससे कॉन्टैक्ट हुआ हो. ये डॉक्यूमेंट जब भी उसने 2 महीने का लिखा है तो आप उस डॉक्यूमेंट को उसके पास 2 महीने के बाद उस कस्टमर के पास भेजेंगे और वो उसका पेमेंट दे के अपना बिल लेगा. दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल. तो ये बिल रिसीवेबल जो व्यक्ति माल बेचता है उस व्यक्ति के पास रहता है, तो इट इज ए डॉक्यूमेंट.
और ये डॉक्यूमेंट तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर्स एज वेल एज बिल रिसीवेबल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड पेबल. Trade payable, the amount payable on the account of goods purchase or service taken in normal course of business. यानी जिस तरह हम कस्टमर को उधार माल बेचते हैं या सर्विस देते हैं, उसी तरह बिजनेस में हम कुछ माल कुछ लोगों से उधार खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं, उसका पेमेंट हम बाद में करते हैं. यानी ऐसा अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल्स. Trade payables also includes creditors and bills payable. Creditors and bills payable. What is creditor? Creditors means मैंने जैसा आपको बताया कि the term creditor represents those person or firm from whom goods have been purchased or service procured on credit and payment has not been made them. यानी उस व्यक्ति को अभी हमने पेमेंट नहीं दिया है, या सर्विस ले ली या माल खरीद लिया. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट. ही विल कंटिन्यू टू रिमेन क्रेडिटर of the firm so long as the full payment is not made to him. यानी जब तक हम उसे पूरा पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा. व्हाट इज बिल पेबल? जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स रिसीवेबल का मतलब हमें पेमेंट लेना है. तो जिन व्यक्तियों से हम उधार माल खरीदते हैं, तो उनको भी फर्म एक डॉक्यूमेंट लिख के दे देती है कि भाई आई प्रॉमिस टू पे रुपीज इतना आफ्टर 3 months. तो हमने जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा है उनको यदि ये डॉक्यूमेंट लिख के दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज गुड्स. ये नेक्स्ट टर्म इज गुड्स. बिफोर गुड्स द टर्म ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल you will see in the last page of the worksheet. Now goods. Goods क्या होता है? Goods include all those things which are purchased for resale or which are used to producing the finished goods which are also meant to be sold. यानी गुड्स वो चीज होती है जो रीसेल के लिए खरीदी हो या अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसे खरीदा हो और वो फिनिश्ड गुड्स सेल के काम में आता हो. एज ए फर्नीचर डीलर, यानी यदि कोई फर्नीचर डीलर है, द परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज टर्म एट गुड्स. क्योंकि फर्नीचर डीलर चेयर, टेबल, अलमीरा इनको ही बेचेगा, तो वो उसके लिए गुड्स हैं. वाइल अदर इज फर्नीचर इज टर्म एज असेट्स. लेकिन यदि एक सिंपल आदमी बिजनेस चलाने के लिए फर्नीचर खरीदता है तो उसमें वो एक टेबल या 2 या 4 टेबल खरीदेगा, तो वो असेट्स कहलाएगी, वो गुड्स नहीं कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी ट्रेडर में स्टेशनरी गुड्स है और स्टेशनरी ट्रेडर के लिए तो स्टेशनरी गुड्स है. लेकिन यदि दूसरी फर्म स्टेशनरी खरीदती है तो वो अपने बिजनेस के पर्पस से खरीदती है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसिव. दैट इज नॉट इंक्लूड्स इन गुड्स. तो मेरे ख्याल से आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि जिस चीज का ट्रेड किया जाता है वो सामान जब हम खरीदते हैं तो वो गुड्स कहलाता है. नेक्स्ट, कॉस्ट. कॉस्ट कैन बी टर्म एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विस. दीज रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी और मनी इक्विवेलेंट्स expressed in term of money. For example,
cost of machine will be include purchase price, freight and installation expenses. Further, the expenses incurred may be actual or nominal. The amount of spend, कहने का मतलब यहाँ ये है, यदि हमने कोई मशीन खरीदी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसको सामान को बनाने के लिए एक मशीन खरीदी है, तो मशीन की कॉस्ट में हम मशीन की कॉस्ट प्लस उसको फैक्ट्री से हमारी फैक्ट्री तक लाने का खर्चा प्लस उस फैक्ट्री को इंस्टॉलेशन यानी बिजली का कनेक्शन वनेक्शन कराने का खर्चा, ये तीनों चीज जोड़ के हम उसमें लिखेंगे दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मशीनरी। यानी केवल मशीन की कीमत ही इंक्लूड नहीं की जाएगी, इट इंक्लूड्स फ्रेट यानी भाड़ा एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस यानी उसको लगाने का खर्चा, ये कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। The amount spent on the purchase of raw material is actual expenditure, where notional expenditure is one which does not involve in any cash outlay. Notional expenditure is conceptual and deemed to have been incurred. For example, rent of owned factory, interest is on capital, etc. कहने का मतलब मेरा ये है इसमें कि नोशनल एक्सपेंसेज कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जैसे हमने बिजनेस एक शॉप खोली और वो शोरूम हमारे खुद के घर का है, यदि हम किराया लेते तो किराया तो एक्सपेंडिचर में कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता, लेकिन वो चूंकि हमारा खुद का है तो दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज नोशनल एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंडिचर हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वाउचर। व्हाट इज वाउचर? ए वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट which provides the authorization to pay and on the basis of which the business transaction are. First of all, record in the books of accounts. A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the account to be debited or credited. The form of a voucher varies from firm to firm. Since vouchers are printed separately by different firms in their own name, vouchers are prepared by accountant and each voucher is numbered and countersigned by an authorized person of the firm. जो भी माल हमने खरीदा उसका बिल, अगर हमने उस माल को जो माल आया उसका भाड़ा दिया उसका बिल, बिजली का बिल दिया उसका बिल, सैलरी दी तो सैलरी में उसकी रिसिप्ट, इन चारों डॉक्यूमेंटों के साथ इसी तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके ऊपर एक एक हम वाउचर और लगा देते हैं, जो चाहे प्रिंटेड हो सकता है या प्लेन भी हो सकता है, और उस वाउचर में जो हमने माल खरीदा है उसकी पूरी डिटेल, यदि भाड़ा दिया है तो किसको दिया है, किस बिल के लिए दिया है उसकी डिटेल, इसी तरह इलेक्ट्रिक बिल के लिए वाउचर बनाया तो कौन से महीने का बिल है, वो सारी की सारी डिटेल इस वाउचर में लिखी जाती है और ये नंबर्ड होते हैं, सीरियल नंबर, और जो भी व्यक्ति इसके लिए पेमेंट के लिए ऑथराइज होता है उस व्यक्ति के इस पे सिग्नेचर किए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। जनरल कंडीशन में रिबेट और डिस्काउंट एक ही टर्मोलॉजी में हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। It is a rebate or an allowance given by the seller to the buyer. यानी कोई भी माल बेचने वाला जब माल खरीदने वाले को कोई छूट देता है तो that is called discount. ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। It is also divided in two parts. First, trade discount. Trade discount, when discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods, is called trade discount. आप सब जानते हैं
कि कोई भी व्यक्ति माल बेचता है तो उसके पास प्राइस लिस्ट होती है। उस प्राइस लिस्ट पर एक फिक्स परसेंटेज यदि परचेजर को सेलर डिस्काउंट देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय ट्रेडर और सेलर टू बूस्ट द सेल। सेल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बट रिमेंबर, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं की जाती है। यानी जितना डिस्काउंट हमें मिला उसको घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है, उस अमाउंट की वैल्यू से ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने 10 रेफ्रिजरेटर या फ्रीज खरीदे, एक फ्रीज की कीमत 10,000 है, टोटल वैल्यू हो गई लिस्ट प्राइस पर 1 लाख रुपीज, और हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, तो हम बुक्स में एंट्री उस गुड्स की 1 लाख का 20% 20,000 घटाने के बाद 80,000 रुपए से ही करेंगे डायरेक्ट। ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती है। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। किसी भी कस्टमर को तुरंत कैश पेमेंट करने पर माल आपने भेज दिया, बेचने के बाद आपने कस्टमर को कहा कि सर यदि आप इसका अभी पेमेंट मुझे तुरंत दे देंगे तो मैं आपको 2%, 3% या 5% कैश डिस्काउंट और दे दूंगा। ये ट्रेड डिस्काउंट के अलावा होता है। ट्रेड डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन कैश डिस्काउंट दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, तुरंत पेमेंट लेने के लिए। इसकी एंट्री बुक्स में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, if a seller allow 2% discount for payment within a week, it will called cash discount. It's always recorded in books of accounts. ये ध्यान रहे, दोनों में फर्क क्या है। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट ही कम होता है और उसे बुक्स में नहीं लिखा जाता है। कैश डिस्काउंट का अमाउंट भी कम होता है और उसकी एंट्री बुक्स में की जाती है। नाउ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। आप जानते हैं कि पहले वैट था, अब गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया और बहुत सारे टैक्स इसमें मर्ज कर दिए। तो ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ETC हैव बीन मर्ज इनटू ए सिंगल टैक्स नोन एज GST. GST is paid at the time of purchase and GST is collected at the time of sale. यानी हम माल खरीदते हैं जब GST हमें पे करना होता है, और माल बेचेंगे तो हमें GST कस्टमर से कलेक्ट करना होता है, और इन दोनों का पेमेंट हमारे द्वारा गवर्नमेंट, डिफरेंस जो होता है इन दोनों के बीच का, वो हम गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। तो वो तो सारी की सारी टर्मोलॉजी थी। These are the main terminology, but there are some other important terms also. We can see next, entry. What is entry? When a transaction or event is recorded in the books of account, it is called entry. किसी भी एक ट्रांजैक्शन को हमने बुक में लिख दिया तो वो एंट्री कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, माल खरीदा तो हमने माल खरीदने की एंट्री, ये एंट्री कैसे होगी, किस तरह होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो एंट्री है वो होगी परचेजेज अकाउंट DR2 कैश। तो इस ट्रांजैक्शन को हमने बुक्स में रिकॉर्डेड कर दिया, तो ये परचेजेज अकाउंट DR2 कैश, इट इज कॉल्ड एंट्री। नेक्स्ट, बैड डेट्स। व्हाट इज बैड डेट्स? दो तरह के डेप्ट होते हैं, एक तो गुड डेप्ट और एक बैड डेप्ट। जो आदमी हमें पेमेंट कर देता है, उधार माल खरीदा, हमने बेचा उधार माल और उस व्यक्ति ने टाइम पे पेमेंट कर दिया, दैट इज गुड डेप्ट। व्हाट इज बैड डेट्स? इट इज द अमाउंट दैट हैज बीन बिकम irrecoverable from a debtor. It is a business loss and debited to profit and loss account as an expense. बहुत सारे के सारे ग्राहक, साल में कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो माल खरीद तो लेते हैं लेकिन पैसा
देते नहीं हैं, यानी वो भाग जाते हैं, तो उनसे अमाउंट को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट्स, यानी जो पैसा हमारा डूब गया उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस मानकर लिख देते हैं। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? देखिए, बैड डेट्स और इंसॉल्वेंट में फर्क है। बैड डेट्स में तो आदमी की कैपेसिटी होती है आपका पेमेंट करने की, लेकिन वो भाग गया और दूसरी जगह चला गया, अभी आपको पता नहीं वो दूसरा काम कर रहा है। बट व्हाट इज इंसॉल्वेंट? एक व्यक्ति, ए पर्सन और एन एंटरप्राइजेज विच इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे द डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। एक व्यक्ति जो आपके सामने है, भागा नहीं है, लेकिन उसको बिजनेस में इतना लॉस हो गया कि वो अब आपके माल का पेमेंट नहीं कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति इंसॉल्वेंट कहलाता है। बैड डेट्स में तो भाग गया आदमी, पता ही नहीं, आप रिकवर नहीं कर रहे और वो दूसरी जगह पर है। बट इंसॉल्वेंट में वो व्यक्ति आपके सामने है, लेकिन उसको बिजनेस में इतना लॉस हो गया कि अब उसके पास कोई सामान ही नहीं बचा आपका पेमेंट देने के लिए, तो द टर्म विल बी यूज्ड एज इंसॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? जो ए पर्सन और एंटरप्राइजेज विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा व्यक्ति या फर्म जो आपका पैसा देने की स्थिति में है, वो सॉल्वेंट कहलाती है। नेक्स्ट, स्टोर्स। द टर्म स्टोर इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर सेल। ऐसा मटेरियल जो बिजनेस में ही कंजम्पशन के लिए, बिजनेस में ही कंज्यूम होता है और जिसे आप बेचने के लिए नहीं खरीदते। फॉर एग्जाम्पल, लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी एंड पैकिंग मटेरियल। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें आप लुब्रिकेंट करते रहते हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, तो वो मशीन के स्पेयर पार्ट्स आपके हों तो ये गुड्स में नहीं आएंगे, इट इंक्लूड्स इन स्टोर्स। नेक्स्ट, रेवेन्यू। Revenue in accounting means the income of a recurring, regular nature from any source। यानी जो इनकम उसे कहते हैं कि ऐसी आय जो रेगुलर नेचर की हो और हमें कंटिन्यू प्राप्त होती रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। माल हम बेचते हैं, रोजाना बेचते हैं, रोजाना पैसा प्राप्त होता है, या हमारा बिजनेस सर्विस देने का है, तो जो भी हम सर्विस देते हैं उसके बदले में हमें पैसा प्राप्त होता रहता है। तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू। इट इज ऑल्सो इंक्लूड द रिसीप्ट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट। ये भी सब चीजें लगातार हमें हर महीने प्राप्त होती रहती हैं, तो वो भी रेवेन्यू में इंक्लूड होगी। Revenue is related with the day-to-day affairs of the business and should also be regular in nature। यानी रेवेन्यू डे टू डे बिजनेस से प्राप्त होने वाली आय और रेगुलर इनकम होती है। As such, the amount of capital introduced by the proprietor or borrowing loan is not a revenue। यानी मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा दिया और आपने बैंक से लोन ले लिया, it is not included in revenue because it is not day-to-day activity. It is a once in a lifetime of business। Next one, revenue from operation। In the revenue earned by the enterprises from its operating activity, it's include revenue from sale of goods and revenue from sale of service। देखिए, रेवेन्यू में और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फर्क है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ उसी रेवेन्यू को इंक्लूड करेंगे जो माल को या माल को बेचने, या अगर सर्विस वाला बिजनेस है तो सर्विस देने के बदले में जो पैसा प्राप्त होता है उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। और अगर इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड को भी जोड़ दें, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू इज ए बिग and revenue from operation is small term। And last,
entity. An entity or business entity means economic unit which is formed for earning income by providing service or sale of the goods. यानी बिजनेस एंटिटी का मतलब प्रोपराइटर और फर्म दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं. जिस व्यक्ति ने कैपिटल लगाई है वो प्रोपराइटर कहलाता है, और जिस बिजनेस में लगाई है दैट इज कॉल्ड एंटिटी कहलाती है. तो दोनों में ये फर्क है. फॉर एग्जाम्पल LG इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति, दीज आर कॉल्ड एंटिटीज. आई थिंक it is clear to all of you. Few more, 2 or 3 more little term remain. What is turnover? Turnover means total sale made in a particular period. एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने कितनी सेल की, उसके लिए हम टर्नओवर वर्ड यूज करेंगे. एक महीने के लिए पूछा जाए कि व्हाट इज द टर्नओवर ड्यूरिंग द मंथ, तो हम एक महीने की सेल जोड़ लेंगे. साल की पूछी जाए तो टोटल सेल हम साल भर की कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड टर्नओवर ऑफ ए ईयर. नेक्स्ट लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक का मतलब डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल और हॉर्स आर नोन एज लाइव स्टॉक. अब आप ये करेंगे सर लाइव स्टॉक का बिजनेस में क्या काम, घोड़े का और जानवरों का, ऊंट का, लाइक डोमेस्टिक एनिमल. ध्यान रखना इसमें मेनली ऊंट, बैल, घोड़ा इट इंक्लूड्स. ये लाइव स्टॉक की टर्म इसलिए कि पुराने जमाने में ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, तो उस वक्त घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी हुआ करती थी जो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी. तो मालिक इनको ऊंट को या घोड़े को या बैलों को खरीद लेते थे. तो इट इज नोन एज असेट्स. ये असेट्स में लिखा जाएगा और इसे लाइव स्टॉक कहा जाता है. एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर और डिबेंचर ऑफ ए कंपनी विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग ए रिटर्न. इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है और उस एक्स्ट्रा पैसे को यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी भी कंपनी के शेयर और डिबेंचर में, जिससे कि आपको उससे इनकम हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉल मी और send me WhatsApp message. I will take test in next term. Thank you very much. Have a nice day.